Hello my dear friends, how are you all? I hope all of you are in good situation, in right condition. Dear friends of standard 9th, all of you know it very well that it is term of chemistry and we are just going to learn chemistry. And you know that chapter 3 atoms and molecules, this chapter is running. Dear friends, this chapter is under progress and I hope all of you are learning very well. Dear friends, if you have any kinds of the doubts, any kinds of the query, then you can ask your all doubts, your all queries when we will be studying through the online class. When online class will run, when we will meet in live class as in on GeoMeet, then you can discuss with me about your all doubts concerned to the chapters, concerned to the subjects. Just we are learning the chemistry, so you can ask the question related to the chemistry during the online live classes. So dear student, live class is the very good, attractive and charming, and you have to make it very well. And dear students, I will definitely try to sort out your all doubts, all types of the problems which you will ask during the live classes. So dear students, don't ignore live class, join live class with a majority of the students. I see and observe that it is my observation that the fewer students only are taking a live classes, rest of the students are not joining with us. Dear students, the constant avoidance of the live class will lead a problems, will create a problems in your concept. Suppose you have some kinds of the query and you are not coming in live class, then you can avoid the concept, the contents forever. So when you are in live class, then you can ask the questions, all kinds of the doubts during the live class. So live class is more beneficial and make it more benefited, much benefited for your benefits. So dear students, without making any disturbance, any wasting of the time, let us come to the main points which we have to discuss in this video. So dear students, I am going to describe in this video a very important topic in this chapter and a very important unit that is known as the mole. So we are going to describe about the mole concept. मोल कॉन्सेप्ट आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं ये मोल कॉन्सेप्ट पे डिस्कस करने वाले हैं. मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है, मोल कॉन्सेप्ट कैसे इसको हम समझेंगे, बहुत सारी क्वेरीज इसमें आएंगी. So dear students, before going through the main topic, let us discuss. I want to describe this topic with the help of the few example by taking some examples under which you can understand the concept of the mole clearly. Dear students, as you have visited the bank, so you have seen that आपने कभी ये कल्पना किया है, गेस किया है कि बैंक में जो कॉइन्स होते हैं, कॉइन मतलब सिक्के, ठीक है, बैंक में बहुत सारे अगर सिक्के हैं, कॉइन को काउंट करना है बैंक में. सो काउंटिंग द कॉइन्स, इट इज डिफिकल्ट टास्क, इट इज अ ग्रेट टास्क एंड it will take larger time to calculate the all coins because there are great amount of the coins, huge number of the numerous coins are there inside the bank. So bankers, any kinds of the bankers, any person related to the bank does not waste his time by counting them. He is only used a weighing machine, a kinds of the machine especially framed for weighing the coins. So you can be surprised that, sir, how can you count the coin by just weighing? So it will be a differentiation, it will create a differentiation, it will create a kinds of the disturbance, so equalization. So dear students, don't be confused. Bankers always count the per unit weight of the coins. So after number of the coins, huge number of the coins are there, so the coins can be measured, coins can be counted by just weighing it. So weighing machine, and that will be reduce the efforts and save the times. So for the convenient, for saving the time and utilizing the time, bankers use the weighing machine for counting the coins. Dear students, suppose that whenever you visit to the
stationery shop and you have to buy a pen. Suppose you are going there for buying the kinds of the pen, and you have to require a few quantity of the pens. Suppose आपको 4-5 पेन चाहिए और बहुत सारे पेन चाहिए, तो आप पेन की दुकान में जाओगे तो आप ये नहीं कहोगे ना पेन वाले से कि हमको 1 kg पेन दे दो, 1 किलोग्राम पेन. So the shopkeeper will get surprised by listening your sound, by hearing your demand, because your demand is invalid, because the pens are given in quantity, not by measuring its weight. Because whenever you go to the vegetable shop, your fruit sellers, when you are passing through nearby fruit sellers and you just want to purchase bananas, so you have to pay the money for the bananas for the number of the dozen. Suppose you want to buy a dozen, तो बनाना आपको किस में मिलेगा? क्वांटिटी में मिलेगा. आप उसको क्वांटिटी में खरीद लोगे, ठीक. So when you want to sugar, the sugar cannot be given in case of the counting, because the sugar cannot be given you by just counting it. जैसे आप दुकान में गए, बोले चीनी हमको दे दीजिए, 1 चीनी दे दीजिए. एक में कंफ्यूज होगा ना बुक सेलर, वो शॉप वाला कंफ्यूज होगा कि इसको 1 चीनी चाहिए कि 1 kg की 1.5 कितना चाहिए. He is not known to you. That's why you have to utilize a unit. Dear students, there are some countries where bananas are also sold on the basis of the weighting, by weighing machine. Means bananas are sold, banana not sold there by just counting in dozen quantity. It is sold directly by just weighting it. So weighing, that is the mass that determine that one. Just like supermarket of USA and Canada, also you can find that the bananas are not sold there by just counting them in a dozen. जैसे दर्जन में मिलता है ना, तो दर्जन में वहाँ नहीं मिलता. वहाँ पे भी वेट में काउंट करके आप उसको मास में दे देंगे. तो वेट में काउंट कर लेंगे, 1 kg चाहिए, 1 kg बाय जस्ट वेइंग. तो आपने देखा कि डिफरेंट क्वांटिटी को, डिफरेंट मटेरियल को लेने के लिए हमको एक यूनिट का यूज करना पड़ता है. यू हैव टू यूटिलाइज एप्रोप्रिएट यूनिट टू मेजर द, टू अंडरस्टैंड दैट वन. किसी भी क्वांटिटी को आप खरीद रहे हो, ये जानना चाहते हो, तो आप उसकी क्वांटिटी बताते हो, ठीक है. क्वांटिटी का मतलब एक यूनिट हम एक्सप्रेस कर रहे हैं. यूनिट मतलब मात्रा, ठीक है. तो यूनिट, जैसे आपने देखा कि लेंथ नापना है तो मीटर में नापते हैं हम लोग, ठीक है. लेंथ को नापते हैं तो किसमें? मीटर में. मास को किसमें? किलोग्राम में, ठीक है. लाइट को किसमें? एम्पियर में. ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडला में, ठीक है. और आपने देखा टेम्परेचर को किस में नापते हैं? केल्विन में. तो इसी तरह अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की बात करें, अगर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को किस में हम नापेंगे? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जैसे कोई भी हमारा सब्सटेंस है, उसको हम किस में नापेंगे कि अमाउंट सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. यू नो दैट द वी आर टॉकिंग अबाउट द सब्सटेंस containing what types of the material can be contained by the substance. In case of the chemistry, we are dealing with chemistry. Don't forget that we are learning physics, we are learning chemistry. So when we consider a mass, it means it will contain ions, atoms or molecules. So ions, atoms or molecules, that we have described in the previous video about that. So the mass which will contain ions, atoms or molecules, that will be the authentic appropriations, compositions of a substance. Okay. The substance, we are dealing the substance, a matter, in that case mass in case of the chemistry. So it will contain amount of substance, means ions, present ions, atoms or molecules. That is deal. Okay. So dear students, how many atoms will be there? If you are talking about the elements, that is we are taking an example of any elements. Okay. Elements, what are the elements? You know it very well. So we are talking about any individual elements. In that case, what will be the total number of the atoms present in that? कितने atoms उसमें present होंगे? So the number of the atoms present in that individually by a unit, that is known as the mole. So आप किसी भी atoms को हम नापना चाहते हैं, उसमें कितने atoms होंगे? तो उसमें atoms जो होंगे स्टूडेंट्स 6.022 into 10 की पावर 23. अगर मुझे किसी कंपाउंड्स में नापना है, किसी भी कंपाउंड्स में नापना है, किसी कंपाउंड्स मॉलिक्यूलर फार्मूला, एनी कंपाउंड्स क्या होते हैं आपको पता है? कंपाउंड्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ द 2 or more एलिमेंट्स जॉइन इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन.
So these types of the formula we are going to calculate just like a formula of the compound, that is H2O. H2O को हमको नापना है, ठीक है। तो H2O में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे भाई? H2O में पहले आप इसका मॉलिक्यूलर यूनिट निकाल लीजिए, 18 यूनिट होगा, ठीक है, 18 यूनिट होगा। तो मॉलिक्यूल्स कितने होंगे इसमें 18 यूनिट्स में? वी आर टॉकिंग 18 यूनिट में हम बात कर रहे हैं। अगर हम वाटर ले रहे हैं तो 18 यूनिट ले रहे हैं, इसका मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। तो अब यहाँ पे मुझे इसमें कितने एक वाटर मॉलिक्यूल में कितने जो है प्रेजेंट होंगे मॉलिक्यूल्स वाटर में? वो होंगे 6.022 इंटू 10 की पावर 23, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 वाटर मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। So dear friends, what is mole? I hope mole is the standard unit, SI unit, इंटरनेशनल यूनिट की बात करें अगर MKS सिस्टम में तो बहुत सारी आपकी SI यूनिट होती है। जैसे मैंने अभी आपको गिनाए बहुत सारी SI यूनिट हैं, और आप फिजिक्स में SI यूनिट पढ़े हो। तो SI यूनिट स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट विच आर वैलिड इन ऑल ओवर द कंट्री, ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंटरनेशनली वी आर टॉकिंग अबाउट द इंटरनेशनल यूनिट्स दैट इज कंसीडर्ड एज द SI यूनिट, ठीक है। तो SI यूनिट के थ्रू अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को अगर हमको मेजर्ड करना है तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज मेजर्ड इन अ मोल। अंडरस्टैंड? द केमिस्ट यूटिलाइज a special types of the units, that is mole. What is the mole stand for? Let us discuss about that. Mole. Okay students, mole. The mole is the amount of substance. The mole is the amount of substance which contains the same number of the chemical units, which contains the same number of the chemical units. अब chemical units में क्या क्या आएंगे देखो, atoms, molecules, and as there are atoms in exactly 12 ग्राम of pure carbon 12. अब प्योर कार्बन 12 में एग्जैक्ट यूनिट बात हो रही, कार्बन को बेस लिया गया है, कार्बन इज द बेस फॉर मेजरिंग द यूनिट्स एटम्स। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स 1 मोल को अगर हम एक्सप्रेस करना चाहते हैं, 1 मोल इज एक्सप्रेस्ड then it will contain 6.022 into 10 की पावर 23 atoms of an elements. किसी भी एलिमेंट्स में 1 मोल अगर हम एटम्स कंसीडर कर 1 मोल कंसीडर कर रहे हैं उस एलिमेंट को, तो इट मीन्स इट विल कंटेन 6.022 into 10 raised 23 एटम्स। उसमें कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे स्टूडेंट्स? कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे? अब मान लो गैस की बात करें तो गैस में 1 मोल अगर हम गैस ले रहे हैं, 1 मोल ऑफ द गैस मीन्स इट विल ऑक्यूपाई 22.4 लीटर वॉल्यूम को क्या करेगी? ऑक्यूपाई करेगी एट NTP नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे। अगर 273 केल्विन टेम्परेचर पे गैस जो ऑक्यूपाई करेगी स्पेस को, वो 22.4 लीटर, इसको 22,400 मिलीलीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इतने मिलीलीटर एरिया को वो क्या करेगी? वॉल्यूम को स्पेस ऑक्यूपाई करेगी, दैट इज द मोल। 1 मोल एक्सप्रेस कर रहे हैं गैस के लिए तो इतना आ रहा है स्टूडेंट्स, 1 मोल एटम्स के लिए एक्सप्रेस कर रहे हैं इतना आ रहा है स्टूडेंट्स। 1 मोल हम यहाँ पे मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट्स और कंपाउंड्स को एक्सप्रेस करना चाहें तो 6.022 इंटू 10 raised 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट्स और कंपाउंड्स विल बी देयर। सो डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो मोल है इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, एंड द एग्जैक्ट कांस्टेंट नंबर दैट इज 6.022 10 की पावर 23. दिस नंबर इज नोन एज द Avogadro number. This number is known as the Avogadro number. इसको Avogadro number के नाम से जानते हैं. This is known as the Avogadro number. And this number is known as the Avogadro number. ये Avogadro number के नंबर से नोन है। अब ये सुन, इसके आप यहाँ पे जो ये नंबर है कांस्टेंट, इसको अगर हम लोग थोड़ा सोचें इसके बारे में तो 6.022 10 की पावर 23, देखिए एक के बाद 23 जीरो है, 10 की पावर 23 मीन्स कितना ह्यूज क्वांटिटी है, कितना बड़ा नंबर है। और यहाँ पे देखिए 6.022 इंटू 10 की पावर 23। अब इस नंबर को अगर काउंटिंग किया जाए, इसको अगर हम लोग काउंट करें तो इसको काउंट करने में कम से कम 7 बार 7 टाइम्स यू हैव टू टेक बर्थ 7 टाइम्स, 7 बार जन्म लेना पड़ेगा। और केवल यही काम करें, केवल
कि बस जन्म लेकर के जितनी आपकी लाइफ है बस केवल पर डे गिनते जाएं, देन वी विल रीच टू नियर अबाउट काउंटिंग, वी विल फिनिश द काउंटिंग। अगर इतना ये नंबर्स, ये मोल नंबर, इतने ही नंबर को अगर हम, इफ दिस नंबर, द नंबर रिटन इन फ्रंट ऑफ योर ब्लैक बोर्ड, इफ दिस नंबर ऑफ cricket's ball, if we have count our labels number of cricket balls just like similar to the numbers, and you have to spread the cricket ball through the entire surface area of the earth, then it will occupy the entire surface area of the earth as well as the land and the water bodies, both will be included, and it will cross over and it will frame a layer of the 100 kilometer layer in the upper surface of the earth. So it means if you are going to spread the cricket balls of this number, we are just going to spread cricket balls, number of balls on the earth surface by this number, then the earth will be covered, earth and land area and water bodies both will be covered, and the entire earth will be occupied by the balls, ठीक है, cricket ball, and it will prepare a layer, it will frame a layer of 100 kilometer in the upper surface. That is why this number is very important to know. So then a question arise in your mind, so who has counted this number? So who count this number and how? By using any kinds of the machine or technically a constant, and this number is fixed in case of the any of the substance, then who has counted this number? So who is the one person? The whole credit is given to that one. So this types of the question arises in your mind. So dear students, I have told you that it is the very difficult task to count this number, and this number is the fixed number which is known as the Avogadro number. तो मोल, अगर मैं 1 मोल ऑफ CO2 की बात कर रहा हूँ, तो CO2 आपका क्या है? 1 मोल ऑफ द CO2 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स. So we are talking about 1 mole of CO2. अगर मैंने लिखा 1 mole of CO2, अब let us discuss. देखिए मैंने लिखा 1 mole molecular and ionic Avogadro numbers और केमिकल यूनिट्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस के लिए वैलिड होगी 6.022. इतने आयंस भी हो सकते हैं 6.022 10 की पावर 23, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं 6.022 10 की पावर 23, एटम्स भी हो सकते हैं. सो 1 मोल ऑफ CO2, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट 1 मोल ऑफ CO2, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो इट मीन्स 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 1 मोल ऑफ CO2, 1 मोल ऑफ CO2, 1 मोल ऑफ CO2, 1 मोल ऑफ CO2, इट मीन्स 1 मोल ऑफ CO2. अब देखिए 1 मोल ऑफ CO2 और 1 मोल ऑफ CO2 दोनों में अंतर है स्टूडेंट्स. 1 मोल ऑफ CO2, अब देखिए यहाँ पे जो ये मोल लिखा है, ये टेक्सटिंग के लिए मोल को हम लोग टेक्स्ट में लिखते हैं, लेकिन जब हम लोग यूनिट में एक्सप्रेस करते हैं इसको तो MOL लिखते हैं केवल. MOL is written in case of the unit expression, but only for describing the text, that is mole, MOLE will be written. Okay, मोल, अब आप जैसे लिख रहे हो टेक्स्ट में तो ये मोल तो पूरा लिखा रहेगा. जब आप इसको यूनिट में एक्सप्रेस करोगे, you are going to just express as a unit, because I have told you that the unit amount of substance is measured by using the unit, that is mole, and it is the SI unit. 1 मोल ऑफ CO2, 1 मोल ऑफ CO2. तो 1 मोल ऑफ CO2 आपको पता है कि 1 मोल ऑफ CO2 कितना होंगे? मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे स्टूडेंट्स? 6.022 into 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2. 1 mole of CO2 express that 1 mole of CO2, this stands for 6.022 into 10 raised 23 molecules of CO2. अब कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इसमें प्रेजेंट होंगे? 6.022, that is the Avogadro numbers. So this types of the number of the molecules will be present if you are talking about the 1 mole of the CO2.
So 1 mole of CO2 that we have taken, we express the 1 mole of CO2 in terms of the mole. 6.022 10 की पावर 23 molecules of the CO2. कितने molecules of CO2 present होंगे? अब अगर हम इसका देखिए अब कितना होता है 44 ग्राम of CO2. अब देखिए 1 mole of CO2 तो इसका molecular ये देखिए मास आ जाएगा, ठीक। और इसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं तो हमको ये देखो निकल आएगा कि 1 मोल CO2 में हम दो ही इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। CO2 इज अ मॉलिक्यूल। अब CO2 मॉलिक्यूल है, एटम तो है नहीं। अब CO2 है तो मॉलिक्यूल है तो इसका मॉलिक्यूलर मास होगा, ओके, इसका मॉलिक्यूलर मास होगा और इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मोल्स एंड यू नो हाउ कैन वी कैलकुलेट the molecular mass. So molecular mass of the CO2, you can calculate the molecular of the CO2 just by putting the value of the individual atoms containing the individual molecular mass. So कार्बन कितना हो जाएगा 12 प्लस ऑक्सीजन कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? ऑक्सीजन का देखिए एक ऑक्सीजन पे 16, तो 2 into 16 that will be 12 plus 16 to 32 and 32 and 12 that is 44 ग्राम। सो यही तो मैंने लिखा CO2 का ये कितना है 44 ग्राम CO2। और कितने भी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे इसमें 6.022 10⁻23 प्रेजेंट होंगे, ओके। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द आयनिक कंपाउंड्स जस्ट लाइक NaCl, किसी और कंपाउंड्स को एग्जांपल लेके समझते हैं तो NaCl, यू नो दैट NaCl इज द आयनिक कंपाउंड्स, ओके। आयनिक बॉन्ड इज फॉर देयर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, it is considered as the ionic bonds. So we are taking an example of the compounds and that is the ionic compounds. Usually we are taking an example of an ionic compound. So that's why we have taken an example of NaCl. This type of the example that we have taken NaCl. So NaCl में आप देखो ना ये Na प्लस Cl माइनस होगा, ये देखो इसमें आयनिक बॉन्ड होगा नहीं। अब हम एग्जाम्पल लिए हैं 1 मोल ऑफ NaCl. वी आर डीलिंग विद द मोल, वी आर गोइंग टू डिस्क्राइब द मोल एसोसिएटेड विद द NaCl. दैट वी हैव टेकन 1 मोल ऑफ NaCl. व्हाट विल स्टैंड फॉर दैट? जस्ट वी आर राइटिंग 1 मोल ऑफ NaCl. 1 मोल ऑफ NaCl, व्हाट विल स्टैंड? 1 मोल ऑफ NaCl विल स्टैंड दैट 6.022 आयंस दिख रहे हैं ना, इसमें आयंस होंगे 6.022 into 10⁻23 सोडियम प्लस आयंस, 6.022 into 10⁻23 सोडियम प्लस आयंस, ठीक है। और क्या होगा भाई इसमें प्लस 6.022 into 10⁻23 Cl माइनस आयन, ठीक। तो 1 मोल ऑफ NaCl में कितना आयंस प्रेजेंट होगा? 2 आयंस, 2 टाइप्स ऑफ द आयंस दिख रहे हैं आपको। वन इज द कैटायंस एंड अनदर वन इज अ एनायन। तो एनायन एंड कैटायन both are formed in an ionic bonds. That's why it is called ionic bond. So 6.022 10⁻23 sodium plus ions and 6.022 10⁻23 क्लोरीन आयन, दोनों आयंस प्रेजेंट हैं। तो इसलिए टोटल जो आयंस होंगे, सोडियम की बात करेंगे तो सोडियम में भी 6.022 10⁻23 आयंस होंगे, इसमें भी होंगे इतने आयंस, होंगे नहीं होंगे? तो इतने आयंस भैया प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो अब हम मास निकाल लें, मास ऑफ 6.022 एनआयंस पेयर्स, तो मास निकाल लें, मास निकाल सकते हैं पेयर्स में, तो हम निकाल सकते हैं 6.022 आयंस इन पेयर्स। तो मास कितना होगा? देखिए सोडियम का कितना होता है स्टूडेंट्स 23, कैल्शियम का कितना होता है, क्लोरीन का 35.5। सो बाय एडिंग दैट वन यू विल गेट 8, 3 and 5 58.5 ग्राम ऑफ NaCl। हमने ये 58.5 ग्राम जो निकाला है, ये क्या निकाला है स्टूडेंट्स? ये हमने मॉलिक्यूलर मास निकाल दिया है। हम NaCl पहले एग्जांपल लिए आयनिक कंपाउंड्स का, तो हम यहाँ पे आयनिक कंपाउंड्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं किसमें? मोल्स में। NaCl आयनिक कंपाउंड है कि नहीं? आयनिक कंपाउंड है।
और ये आयनिक कंपाउंड्स हमने कितना लिया स्टूडेंट्स, 1 मोल। जैसे ही लिखा हमने 1 मोल टेक्स्ट में, देखो लिखने में और यूनिट में एक्सप्रेस करने में बहुत अंतर होता है। जब आप यूनिट में एक्सप्रेस करोगे मोल को तो क्या लिखोगे, MOL, ठीक है, मोल। अब जब आप इसको टेक्स्ट में बताना चाहते हो, डेफिनेशन देना चाहते हो, कुछ और लिखना चाहते हो, देन यू विल राइट इट कम्प्लीटली MOLE, पूरा लिखोगे, ठीक। तो देखिए यहाँ पे इसका ये आप निकाल सकते हो, आयंस में प्रेजेंट होंगे, अब पेयर ऑफ आयंस में जो मास होगा हम निकाल लेंगे, मास ऑफ इतना 1 पेयर्स इतना हो जाएगा, ठीक है। तो 58.5 ग्राम ऑफ NaCl। सिंबल की बात करें, सिंबल ऑफ द मोल यूनिट, तो सिंबल ऑफ द मोल यूनिट केवल यही MOL, द यूनिट ऑफ मोल इज गिवन बाय ए सिंबल, केवल MOL लिख देना आप यहाँ पे, जो मैं बात कर रहा हूँ सिंबल में MOL, ओनली यू विल राइट एज ए सिंबल, दैट इज MOL। So dear students, I hope all of you have understood the terms mole. अब हम क्या कुछ करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ग्राम एटॉमिक मास एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास। एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे बाद में। मोलर मास क्या है स्टूडेंट्स, लेट अस नो अबाउट द मोलर मास। मोलर मास की डिस्कस करते हैं पहले। लेट अस डिस्कस अबाउट द मोलर मास। आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड द टर्म्स मोल। लेट अस डिस्कस अबाउट द मोलर मास। देखिए मोलर मास आ गया, ठीक। मोल अगर समझ में आ गया तो मोलर मास कैसे निकालेंगे। तो मोलर मास क्या है, द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी मटेरियल्स इज कॉल्ड मोलर मास। The mass of 1 mole, the mass of 1 mole of any material, the mass of 1 mole of any material is known as molar mass. तो मोलर मास क्या होता है, the mass of 1 mole of any material is known as the molar mass. तो इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे, ग्राम पर मोल। यूनिट क्या हो जाएगी, ग्राम पर मोल या किलोग्राम पर मोल, केजी पर मोल या ग्राम पर मोल यूनिट एक्सप्रेस कर सकते हैं। मोलर मास ऑफ सब्सटेंस मीन्स है मास ऑफ 6.02 ग्राम मास ऑफ दैट सब्सटेंस। जैसे H2 का निकालना है आपको, H2 का तो मास ऑफ 6.022 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ द हाइड्रोजन। ओके, तो कितने मॉलिक्यूल्स होंगे H2 में, H2 में 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे H2 में, हाइड्रोजन्स में, ठीक है। इसका मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास अगर आप निकालना चाहो H2 का तो 1 में होता है 1.008, तो आप इसको 2 का मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि यहाँ क्या है H2, तो आ जाएगा 2.016 ग्राम, 2 ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल। मॉलिक्यूलर मास एक्सप्रेस करना है तो 2.016 ग्राम पर मोल, ये हो जाएगा। ग्राम पर मोल आप इसको एक्सप्रेस करना चाहते हो पर मोल, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन पर यूनिट ऑफ एनी मटेरियल, ये लिखा है ना, द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी मटेरियल्स। तो 1 मोल मतलब है उसको मोल से नीचे डिवाइड कर देंगे पर मोल, दैट विल स्टैंड। ओके, मोलर वॉल्यूम क्या है स्टूडेंट्स, मोलर वॉल्यूम मैंने बताया कि कोई भी गैस है, एनी काइंड्स ऑफ द गैस एट 273 केल्विन टेम्परेचर पे, एट 273 केल्विन टेम्परेचर पे नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर का गैस 1 मोल ऑफ गैस विल ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर, ठीक है, लीटर पर मोल। ये कितना एरिया को सरफेस करेगी, मिलीलीटर। ओके, 22 लीटर्स। और तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ एनी गैस सब्सटेंस इज कॉल्ड मोलर वॉल्यूम। तो किसी भी गैस का, कोई भी गैस है
जो वो वॉल्यूम स्पेस का ऑक्यूपाई करेगी इन लीटर मिलीलीटर, ठीक है, दैट इज नोन एज द मोलर वॉल्यूम ऑफ द गैस। वॉल्यूम की बात करूंगा तो गैस की ही बात करूंगा, तो गैस में भी मोल्स होते हैं, गैस में भी हम मोल्स काउंट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर गेटिंग वेरी वेल। हाउ मेनी मोल्स आर देयर इन सर्टेन मास ऑफ अ सब्सटेंस। किसी भी सर्टेन सब्सटेंस में कितने मोल्स प्रेजेंट होंगे, इसको हम कैसे निकालेंगे। कोई भी सब्सटेंस है उसमें कितने मोल्स प्रेजेंट होंगे, ये कैसे निकालेंगे, काउंट कैसे करेंगे, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। हाउ कैन यू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस, नंबर ऑफ मोल्स को आप स्मॉल n से रिप्रेजेंट कर सकते हो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस दैट इज द गिवन मास ऑफ द सब्सटेंस इन ग्राम। मास, ये गिवन मास होता है जो पहले आपको दिया जाएगा, ठीक है। मास ऑफ द सब्सटेंस, मास ऑफ द सब्सटेंस इन ग्राम अपॉन मोलर मास, ठीक है। मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस, मोलर मास of the substance in gram per mole, in grams per mole, in grams per mole, ऐसे आ जाएगा आपका। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस, मास ऑफ द सब्सटेंस इन ग्राम्स, इट मीन्स इट विल बी गिवन मास एंड दिस विल बी द मॉलिक्यूलर मास। तो इससे क्या निकल आएगा, मोलर मास निकल आएगा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है, तो मास ऑफ सब्सटेंस, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे किसी भी इंडिविजुअल कंपाउंड्स में, तो आप क्या करोगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसी भी सब्सटेंस में, तो मास ऑफ द सब्सटेंस नीचे लिखते हैं ताकि यहाँ पे लिखें, मास ऑफ द सब्सटेंस अपॉन मोलर मास इनटू, मोलर मास किसका निकालो, मोलर मास उसी कंपाउंड का सब्सटेंस का निकालोगे, इनटू बाद में किसका कर दोगे मल्टीप्लाई, एवोगाड्रो नंबर से। एवोगाड्रो नंबर से आप जैसे मल्टीप्लाई करोगे, एवोगाड्रो नंबर क्या होती है 6.022 10⁻23, तो हमको क्या निकल आएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ओके, तो जैसे मुझे मैग्नीशियम, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मैग्नीशियम एटम्स आर इन 100 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम, 100 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम में कितने मोल्स प्रेजेंट होंगे, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। देखो 100 ग्राम मैग्नीशियम, तो ये 100 ग्राम मैग्नीशियम क्या है आपका, ये गिवन मास है, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास कितना होता है मैग्नीशियम का, ये 24 यूनिट होता है, 24 यूनिट, और ये 100 ग्राम आपका ये गिवन मास है, मैग्नीशियम का है। क्या पूछ रहा है आपसे, आप निकालिए इसका नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, ठीक है। मोलर मास ये कितना हो जाएगा, 24 ग्राम पर मोल, तो जो यूनिट में दिया इसका मोलर मास लिख लेंगे, 24 ग्राम पर मोल में कन्वर्ट कर देंगे इसको, ठीक है, 24 ग्राम पर मोल। अब आपको लिख लेना है, तो नंबर ऑफ मोल्स इन 100 ग्राम, नंबर ऑफ मोल्स इन 100 ग्राम, 100 ग्राम में कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, आप क्या लिखोगे पहले, तो कितना दिया है देखो, गिवन मास 100 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास कितना है 24, देखिए 24 ग्राम पर मोल, ओके, तो ग्राम पर मोल, और यहाँ पे देखिए ग्राम पर मोल, और ये आपका ग्राम दिया हुआ है 100 ग्राम, तो ग्राम यूनिट सेम हो जाएगा, कैसे मोल ऊपर चला जाएगा, तो आपका कितना आ जाएगा 100 का इसमें डिवाइड कर दीजिए 24 में, तो लगभग आएगा 4.17 मोल, ओके। जब आप डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 4.17 मोल, देन यू कैन काउंट दैट, मोल्स निकाल सकते हो स्टूडेंट्स ऐसे, और प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर सकते हो।
चलिए कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। लेट अस सॉल्व सम प्रॉब्लम्स। जैसे 9 ग्राम वाटर्स में कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे? 9 ग्राम वाटर में कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे? 9 ग्राम वाटर्स में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है। 9 ग्राम H2O में क्या निकालना है स्टूडेंट्स? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे इसमें? कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे? अभी मैंने कहा था कि जब हम लोग मॉलिक्यूल्स निकालते हैं तो हम लोग क्या करते थे? देखो, गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक, राइट स्टूडेंट्स? मोलर मास इनटू एवोगाड्रो नंबर का मल्टीप्लाई करते थे ना? एवोगाड्रो नंबर का मल्टीप्लाई करते थे। तो अब देखिए गिवन मास कितना है आपका? दिया 9 ग्राम, 9 तक देंगे, ठीक है, 9 ग्राम। अब मोलर मास कितना है देखिए H2O का, तो कितना हो जाएगा? 18 ग्राम पर मोल, ठीक। और एवोगाड्रो नंबर्स में बात करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे एवोगाड्रो नंबर कितना है? 6.022 इंटू 10 की पावर 23, ठीक है, 6.022 10 की पावर 23 आप रख दीजिए। 18 ग्राम वाटर का आप 18 ग्राम मोलर मास रखना है, मोल में मत लिखिए, 18 ग्राम में लिख दीजिए। देन आफ्टर सॉल्विंग दिस वन यू विल गेट, देखिए ये 9 2 जा 18 ग्राम कट गया, तो इसको 2 से डिवाइड कर देना है। तो 2 3 जा 6, 3.011 और इंटू 10 की पावर 23, इतने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। 6.022 3 मॉलिक्यूल्स। कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? 3.011 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स। दैट्स वी हैव सॉल्व। I hope students, all of you have understood this one clearly. So thank you students for watching this video. My dear students, I hope all of you have learned all the contents and discussion very well. We have described more concept and I hope all of you have understood it clearly. Thank you students for watching today's video.